Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying differentiation of implicit, explicit functions and inverse trigonometric functions, and using these topics we will be covering exercise 5.3. So let us start. This exercise we will understand implicit and explicit functions. So what are implicit and explicit functions? In implicit functions, we have x and y are in mixed form. That means in any function in which x and y are written in mixed form are known as implicit function. For example, xy plus y square plus 10x is equal to 1 is an implicit function. One more example I can take: x plus 10 y square plus x by y is equal to 5. So these are implicit functions. Now what is explicit function? In explicit function or in explicit functions, in this either y is written in terms of x, that means it will contain the function of x overall, or sometimes also we consider as x is written in terms of y overall, यानी कि y होगा और यहाँ पे कुछ x का एक्सप्रेशन होगा. For example, y is equal to x cube plus 10x minus 1. So this is an explicit function क्योंकि y in terms of x लिखा है, ये mixed form में नहीं है, but here they are written in mixed form. So these are implicit functions. So in this exercise we will differentiate these kind of functions. Implicit, explicit दोनों हमें मिलेंगे, यानी कि we will get two variables. ठीक है. Implicit and explicit as in class 12th approach wise important है बच्चा. 5.3 direct exercise है, लेकिन जब आप miscellaneous करेंगे तो there are some questions in which you have to understand that how can you find the approach such that you can solve the question using implicit and explicit functions definition. So अगर कोई function implicit में है और उसको जो आपको proof करना है उसका derivative वो explicit में लिखा है, तो हम उसको starting में ही try करेंगे कि explicit में convert कर ले. ठीक है. बाकी आप miscellaneous में देखेंगे जब हम वो questions करेंगे, then you will understand कि ये approach में कैसे हमारी help करता है, कि हम कैसे find out करें कि what should be the approach, ये हमारी definition help करता है. But point 3 is very direct exercise, तो इसमें इतनी ज़्यादा इसकी help की ज़रूरत नहीं होगी. Right. So exercise start करने से पहले एक दो important things we should understand. First thing is this, that we know the derivative of y. The derivative of y is what? X. Sorry, the derivative of y with respect to x is what? dy by dx. Right? ये हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ y को ही हम dy by dx लिखते हैं. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं. अगर हमें y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो हम कैसे करेंगे? तो y स्क्वायर, तो एज पर द चेन रूल इट विल बिकम 2y नाउ इनटू में dy by dx. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेता है. इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट 10y, सो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट 10y? सो 10y, 10 ऑफ समथिंग सेकंड स्क्वायर द एंगल सेम इनटू में द डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy by dx. ठीक है. तो अब y के टर्म्स में भी हमें फंक्शंस मिलेंगे, तो हमें अच्छे से केयरफुली करना है कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो केयरफुली लिखना है. ठीक है. तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो here is the exercise 5.3. कुछ selected questions पिक किए हैं, सब questions हमने पिक नहीं किए हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन होगा, वो आप देख लेना. बट मैंने वेराइटी वाले क्वेश्चंस पिक कर लिए, जो डिफरेंट है वो पिक कर लिए, जो पिक नहीं किए वो आप इजीली कर लेंगे. सो दिस इज द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y. ठीक है. तो यू कैन सी इट इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन. सो डिफरेंशिएट, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट यू फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx. सो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. with respect to x. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन. सो ax is a constant x का 1 प्लस by स्क्वायर, b is a constant y स्क्वायर का 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू cos y का, cos का होता है आपका माइनस साइन, एंगल एज इट इज साइन y इंटू dy by dx. लेकिन हमें dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बच्चा जो भी dy by dx की टर्म है उनको लेफ्ट में लेके जाओ, कॉमन लो, जो भी आप कर सकते हो वो सब कुछ करके dy by dx की वैल्यू आपको निकालनी है. तो dy by dx की वैल्यू जो आपके पास आएगी, अगर आप इसको वहाँ लेके जाते हैं तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y. So this will be the final answer. So this is the final answer. It's a 1 mark question. Next पे आते हैं. Next is this xy plus y square is equal to 10x plus y. So again we have to find its derivative. So what is the equation? xy plus y square is equal to 10x plus y.
So now differentiating on both sides with respect to x. So x y, बचा x y, x and y, they are two terms, so we will use product rule here. Derivative of x, which is 1, y as it is, plus x as it is, derivative of y dy by dx. ठीक है, तो इसमें product rule लगेगा, plus now y square का 2y into derivative of y which is dy by dx is equal to 10x का secant square x only into derivative of x भी करता है which is 1 प्लस y का dy by dx. तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इन चारों टर्म्स को हमने डिफरेंशिएट कर लिया और इसमें लगा है प्रोडक्ट रूल बिकॉज इट इज कंटेनिंग टू टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ अगेन द सेम थिंग, जो भी dy by dx की टर्म्स है आप उनको लेफ्ट में रख लेंगे, बाकी को राइट में रख लेंगे. तो वी विल गेट x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस dy by dx is equal to secant square x minus y. So what will be the answer? The final answer will be dy by dx is equal to secant square x minus y upon x plus 2y minus 1 is the final answer. Again it's a 1 marker, 2 marker भी आ सकता है लेकिन chances कम है. Okay, now this is the next question. Again we have to find different dy by dx. So the same approach, differentiating on both sides with respect to x. So differentiating on both sides with respect to x. Differentiating on both sides with respect to x. तो बच्चा जहाँ प्रोडक्ट रूल लगना है वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम केयरफुली. तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल. सो एक्स स्क्वायर का 2x वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का dy by dx. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्स वाई स्क्वायर. सो एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy by dx प्लस एक्स का 1 वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy by dx एंड इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव इज 0. काफ़ी बच्चे यहाँ एरर कर देते हैं, 81 लिख देते हैं, तो बी केयरफुल, 81 इज कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. नाउ dy by dx कैलकुलेट करना है, तो जो भी dy by dx की टर्म्स है उनको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे. सो इट विल बिकम dy by dx इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? सो वी विल गेट फाइनल आंसर एज dy by dx माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square. So it will be the final answer. Okay, it is like 2 marker, 1 marker भी आ सकता है लेकिन 2 marker भी आ सकता है. Next is this sin square y plus cos xy is equal to kappa. K ये it's similar to k but it's a Greek letter kappa. NCERT के according. So start करते हैं. So what is the given equation? Sin square y प्लस cos xy is equal to k लिख सकते हैं आप या kappa लिख सकते हैं, it is a constant. So now differentiating on both sides with respect to x, both sides with respect to x. So derivative of sin square y. So sin square y क्योंकि पहले पावर है तो 2 इंटू साइन y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन y विच इज़ कॉस y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ y विच इज़ dy by dx. तो बच्चा चेन रूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे. नाउ कॉस ऑफ समथिंग एक्स वाई बच्चा कंप्लीट इसका एंगल है. सो कॉस ऑफ समथिंग तो माइनस साइन द सेम एंगल इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल. एक्स का 1 वाई एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ वाई का dy by dx इज इक्वल टू के या कापा इज अ कॉन्स्टेंट यानी कि डेरिवेटिव विल बी 0. ओके इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं. 2 sin y cos y एज इट इज़, आप इसको sin to y भी लिख सकते हैं एज पर द फॉर्मूला. इफ़ यू वांट यू कैन राइट. यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट माइनस वाई साइन एक्स वाई को ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि ये इसका एंगल है, माइनस एक्स dy by dx इंटू साइन एक्स वाई. ठीक है, तो साइन एक्स वाई वाली जो टर्म थी आगे वो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई. अब द सेम थिंग जो भी dy by dx की टर्म है उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे और कॉमन भी ले लेंगे dy by dx. तो अगर आप dy by dx कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में आपके आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देता है साइन टू वाई
minus x sin xy is equal to y sin xy. So what will be the final answer? Dy by dx. The final answer will be y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. So this is the final answer, right? Next पे आते हैं. Next is sin square x plus cos square y is equal to 1. Sin square x plus cos square y is equal to 1. तो same thing. Sin square x plus cos square y is equal to 1. So differentiating on both sides with respect to x. Differentiating on both sides with respect to x. So sin square x बचा, chain rule, 2 sin x into derivative of sin x which is cos x. डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा. कॉस स्क्वायर वाई, तो बचा कॉस स्क्वायर वाई. पहले कॉस वाई का करेंगे स्क्वायर के अकॉर्डिंग. 2 cos वाई इंटू में कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो पहले ही मैंने माइनस आगे लिख दिया साइन वाई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विच इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. 1 का डेरिवेटिव इज 0. वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रखेंगे और बाकी सबको राइट में लेके जाएंगे. सो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स 2 cos y sin y. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला भी बना के लिख सकते हैं, बिकॉज sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x एंड द डिनोमिनेटर will become the formula of sin 2y. So this is the final answer. Next is this. जब भी inverse trigonometric functions based questions आते हैं डेरिवेटिव में, तो हम ITF की हेल्प लेते हैं, यानी कि inverse trigonometric functions की हेल्प लेते हैं. उसमें कैसे हेल्प लेते हैं कि पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये tan इनवर्स है with this एज आर्ग्यूमेंट, है ना. सो ये जो आर्ग्यूमेंट है काफ़ी हैवी है, ये सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, हैवी आर्ग्यूमेंट है. तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाने लग जाएंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए बच्चा. जब भी ITF का क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव में, तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग ITF प्रॉपर्टीज़ या ITF रिजल्ट्स. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प लेंगे सब्सटीट्यूशन की. तो आपको ये देखना है कि हम x को क्या सब्सटीट्यूट करें कि कोई फॉर्मूला बन जाए. तो उसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए. tan 3x sin 2x sin 3x cos 2x, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, 1/3 एंगल आइडेंटिटीज़, कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ एंड सम टू प्रोडक्ट टू सम. तो जितना भी आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया उसकी एक एक आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चा. ये कैलकुलस में तो हेल्प करती ही करती है, ITF में भी हेल्प करती है और आगे तो हेल्प करेगी 12th के बाद अगर आप मैथ्स कंटिन्यू करते हैं. तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इट इज़ सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ tan 3x या tan 3 थीटा, लेकिन उसमें x की जगह tan होना चाहिए. तो उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम x को पुट करने वाले हैं tan थीटा. तो अगर हम x को tan थीटा पुट करते हैं, सो इफ x इज tan थीटा व्हाट विल बी थीटा tan इनवर्स x, क्योंकि अगर आप पुट कर रहे हो तो एंड में आपको उसकी वापस से वैल्यू भी पुट करनी होगी. तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा हमारा y क्या बन जाएगा, y tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एंड विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. एज इट इज़ ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स tan को नलीफाई करेगा एंड यू विल गेट 3 थीटा. सो y 3 थीटा आ गया. वट वॉज थीटा? थीटा वॉज tan इनवर्स x. तो हमें y क्या मिल गया, देयरफॉर वी आर गेटिंग y एज 3 tan इनवर्स x. अभी कितना छोटा सा और सिंपल सा फंक्शन हो गया. अब ईजिली वी कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव. सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? इट्स डेरिवेटिव विल बी 3 अपॉन tan इनवर्स x, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है. y का आंसर इन टर्म्स ऑफ y जो लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो दिस इज एक्सप्लिसिट. अब एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, हम अभी जस्ट डेरिवेटिव सीख रहे हैं, लेकिन मिसलेनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की डेफिनेशन का रोल है अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अगेन ITF का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना भी हमें इसे सिंप्लीफाई करना आता है, देन वी विल स्टार्ट इट्स डेरिवेटिव. तो बच्चा सिंप्लीफिकेशन में ITF के आइडेंटिटीज़ का तो रोल है ही, बट आपको पता है कि कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है आप पर्टिकुलर बच्चों के लिए, पर्टिकुलर फॉर दिस सेशन. सो अगर आप ITF का फॉर्मूला आपको पता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप सब्सटीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं. तो देखो अगर मैं आपको बताऊं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, एज इट इज़. तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. मैं वाई एम सेइंग कि आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये यूज़ करना, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ITF की आइडेंटिटीज़ हैं वो हमें नहीं करनी है. तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ये यूज़ कीजिए और यहाँ से आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव और वो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट. अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? राइट. तो हम क्या करेंगे,
हम सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे। तो अगेन हमें कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करना है कि फॉर्मूला बन जाए किसी का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चा अगर x की जगह tan थीटा आ जाता है, इफ़ वी पुट इन प्लेस ऑफ x एज tan थीटा, यहाँ से थीटा भी निकाल लिया करिए साथ के साथ जहाँ पे भी आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं ITF में, क्योंकि एंड में आपको पुट तो करना ही है। तो अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं tan थीटा तो यू विल गेट cos इनवर्स 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and this is the formula of cos 2 theta. तो cos इनवर्स cos को नलीफाई करेगा, यू विल गेट 2 थीटा, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो आप यहीं इसी स्टेप पे पहुंच गए, आप इसको डेरिवेटिव करके इसका आंसर निकाल लो। तो ये काइंड ऑफ डेरिवेशन भी हो गया इस फॉर्मूले का, ITF फॉर्मूले का। ठीक है, तो आप ऐसे करना है ऐसे कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो, बट आई विल सजेस्ट यू फॉर 2020 टू 2021 सेशन स्टूडेंट्स कि वो ये वाला प्रोसेस यूज़ करें, क्योंकि उनके लिए ये जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हट चुका है, राइट। ओके, नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो अगेन सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे। तो सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेके अगर हम इसको करते हैं, सो क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बच्चा? हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं tan थीटा, बिकॉज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो हमें यही देखना है कि हमें ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करना है जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो हमने क्या पुट किया? हमने x को tan थीटा पुट कर दिया, एंड वेयर थीटा इज tan इनवर्स x। तो जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये नलीफाई नहीं करने वाला। तो हमें अंदर को साइन में चेंज करना है, बाहर वाले को cos इनवर्स में चेंज करना है। तो आई एम चेंजिंग cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन। हाउ कैन आई चेंज? साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, राइट। cos x इज साइन 90 माइनस एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग नाउ साइन इनवर्स से साइन नलीफाई होगा, एंड यू विल गेट पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? Its derivative will be 0 minus 2 upon 1 plus x square. So this is the final answer, right? तो सब्सटीट्यूशन बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर ही बेस्ड है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ आते हैं आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो आपको ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करना है कि फॉर्मूला बन जाए। तो साइन वर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट में अगर जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को अगर मैं साइन थीटा पुट करती हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। यस, फॉर्मूला बन जाएगा। अगर x को हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन दिस केस वी आर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज, आइदर वी कैन पुट साइन थीटा और वी कैन पुट कॉस थीटा, बट हम पुट करेंगे साइन थीटा नॉट कॉस थीटा बिकॉज ऑफ दिस डोमेन पार्ट। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, मैंने डोमेन के लिए कुछ नहीं आपको बताया, लेकिन बच्चा डोमेन का रोल होता है। ठीक है, तो डोमेन का रोल कैसे होता है उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चा। कॉस इनवर्स की जो आपने डोमेन एंड रेंज स्टडी की होगी, तो इसकी जो रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज, वो होती है 0 to पाई, राइट, 0 to पाई। तो यानी कि इसकी रेंज 0 to पाई होती है क्लोज्ड, एंड साइन वर्स की क्या होती है? साइन वर्स की होती है माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। ठीक है, इसकी रेंज बोल लो अगर मैं ITF की बात करूँ। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ बच्चा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस की प्रिंसिपल डोमेन 0 to पाई होती है, साइन की माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। तो बच्चा ये नेगेटिव में भी गया है ना, माइनस 1/√2 to 1/√2। तो ये नेगेटिव में गया है, इससे नेगेटिव एंगल्स आएंगे, इसलिए हम साइन पुट करेंगे, हम कॉस नहीं पुट करेंगे। ठीक है, वैसे तो 12th में इनका ज़्यादा रोल नहीं है डोमेन का, CBSE में ज़्यादा रोल नहीं है, बट ITF में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ITF को हम डोमेन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, बट CBSE ने बहुत लिमिटेड पार्ट पिक किया है, तो इसलिए आप ज़्यादा डोमेन को नहीं देखेंगे चलेगा। लेकिन जहाँ पे कॉस और साइन दोनों की पॉसिबिलिटी आ जाए, तो बस एक बार ये देख लो कहीं नेगेटिव की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेगेटिव की इन्वॉल्वमेंट है तो साइन पुट करो, एंड अगर ओनली पॉजिटिव है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए वी आर पुटिंग ओनली साइन, सो पुट x एज साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी साइन इनवर्स x। आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो दिस इम्प्लाइज आवर y विल बिकम साइन इनवर्स 2x, x इज वॉट? साइन थीटा, into root of 1 minus x square, so 1 minus sin square theta, and which is what? Cos theta. So it will become sin inverse 2 sin theta cos theta, and which is the formula of sin 2 theta. So sin inverse of sin 2 theta, sin inverse sin को nullify कर देगा, and you will get 2 theta, right? And what is theta? Theta is sin inverse x. So y आ गया हमारे पास 2 sin inverse x. Now we can find its derivative. So what will be dy by dx? Dy by dx will be 2 upon root of 1 minus x square. So this is the final answer, right?
ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस अगेन सेकेंड इनवर्स ITF का रोल है, आर्ग्यूमेंट हैवी है तो हम सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे। तो हमें कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करना है जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए। y इज सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1, राइट। 2x² - 1, तो उसको सोचो 2x² - 1 हमारे पास बच्चा जब भी इस टाइप का होता है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यू आर हैविंग 6 ऑप्शंस, आइदर यू कैन पुट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड, कॉसिकेंड, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब हमारे पास ऑप्शंस है। तो आपको ये सोचना है कि 2x² - 1 में x की जगह अगर कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जो इसको फॉर्मूला बना देगा। तो इफ़ यू रिमेंबर 2 cos square थीटा - 1 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। So because of that only we will substitute x as cos theta. We will substitute x as cos theta. So theta will be cos inverse x. ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ITF में डायरेक्ट वहीं की वहीं थीटा की वैल्यू थीटा की भी वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि वो आगे काम आती है। सो y will become secant inverse 1/2 cos square theta - 1 which is the formula of cos 2 theta. So it will become secant inverse 1/cos 2 theta and that will become secant inverse 1/cos 2 theta can be written as secant 2 theta and that will become 2 theta. So using this our y will become twice of theta, that is 2 cos inverse x. So if this is y, what will be its derivative? Then dy by dx will be -2/√1 minus x square. So this is the final answer. In next lecture we will be studying parametric form and their differentiation, and using these topics we will be covering exercise 5.6. Take care, all the best, bye bye.